Hello 12th class students, welcome to our mathematics class. Students, in our previous video we have completed the basic concept, basic introduction of the chapter 9 indefinite integrals, and we have discussed the basic formulas which will be used in our exercise 9.1. So let's start with our exercise sum. In the first sum we are to evaluate the different integrals. We are given the parts. The first part is we are to find the integration of 1 upon 3x plus 2 to the power 1 upon 3 dx. देखिए कल हमने फॉर्मूले किए थे. यू कैन सी यहाँ पे हमने 1 upon 3x plus 2 to the power 1 by 3 है. We can transpose this on the numerator. When we take this term in the numerator, this power becomes negative, and we are having integration of 3x plus 2 to the power minus 1 upon 3 dx. And we have done the formula integration of ax plus b to the power n. इंटीग्रेशन करते वक्त पावर 1 इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होने के बाद जो आपकी पावर है उसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं. साथ में जो आपका लीनियर फंक्शन में x के साथ जो कांस्टेंट होता है उससे भी आप डिवाइड करते हैं. दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b to the power n क्या होता है? इंटीग्रेशन ax plus b to the power n plus 1, ये तो हुआ पावर अपॉन n plus 1 इंटू a. साथ में जो लीनियर में a है आपका मल्टीपल x का, उसको भी हम उससे भी हम डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ देखिए इसको we are having here 3x plus 2. In place of ax plus b we are having 3x plus 2. So in place of a we are having 3 here. And power is minus 1 by 3. In place of n we are having minus 1 by 3. So difference its integration will be 3x plus 2. Power को हमें 1 increase करना है, minus 1 by 3 plus 1. We get 2 by 3. And the denominator will divide it by this power minus 1 by 3 plus 1. That is 2 by 3. Also we are to divide this function by the coefficient of x, that is 3. So our integration will be 3x plus 2 to the power minus 1 by 3 plus 1 upon minus 1 by 3 plus 1 into 1 upon 3 plus c. ओके, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे we are having 2 by 3 here. So this 3 by 2 on going to the multiplication becomes the we will write the reciprocal. 3 to 3 get cancelled. We are having 1 upon 2 3x plus 2 to the power 2 by 3 plus c. In its third part, we are to find the integration of sin 2x plus cos 2x. We have done the formula integration of sin x is minus cos x, and integration of cos x is sin x plus c. After that we have done the integration of sine function of a linear function. That means if we are to find sine of integration of sine of ax plus b dx, that will be minus cos ax plus b upon a. Similarly, integration of cos ax plus b will be dx लगाना ना भूलें, will be sin ax plus b upon a. ओके, तो यहाँ से जब हम कंपेयर करते हैं आर टू, हमने देखो कि ऑल्सो ये जो है दो फंक्शंस का सम है, तो उसका इंटीग्रल जब हम करेंगे वी कैन सेपरेट दिस इंटीग्रेशन. ओके, सो वी कैन राइट दैट इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx. का हमने प्रूव की वी आर हैविंग इंटीग्रेशन ऑफ f1x plus f2x dx. So we can solve this as integration of f1x dx plus integration of f2x dx. ठीक है, दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन का के सम के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं. प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx. Now we will compare this sin 2x with sin ax plus b. Here value of a is 2 and value of b is 0. So it will be
ax plus b upon a. So in place of a we are having 2, in place of b 0. So we are having minus cos 2x upon 2. Okay. Similarly cos का साइन होता है, cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x upon 2. ठीक है, जो आपका x का मल्टीपल है वो आपका उससे डिवाइड हो जाएगा फंक्शन. Now in the sixth part we are to find the integration of e to the power 3x minus 2 e to the power x plus 1 upon x dx. Okay, so again we can separate the integration on each of the function. So we are having integration of e to the power 3x dx minus twice of integration of e to the power x dx plus integration of 1 upon x dx. You know differentiation of log x is 1 upon x. So obviously integration of 1 upon x is log x. तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज ना हो. जो आप पावर से फंक्शन शुरू करते हैं वो कहाँ से शुरू होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर -1. यहाँ पे अगर 1 अपॉन एक्स को पावर फंक्शन में पहुँचा दें तो ये देखिए पावर -1 है, इसमें +1 करेंगे तो पावर 0, नीचे आपका 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा. तो ये ध्यान रखना 1 अपॉन एक्स को हमने पावर फंक्शन में चेंज नहीं करना है. 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod x. ओके, सो ऑल्सो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन एज इट इज e टू द पावर x एंड integration of e to the power ax is e to the power ax exponential as it is. साथ में ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ से a से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ a से हमें डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो इन दिस वे वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर. हियर a की जगह पे यहाँ पे क्या है 3. सो वी आर हैविंग इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x e टू द पावर 3x अपॉन 3 माइनस 2 e to the power x plus the log of mod of x plus constant of integration c. Now in the eighth part we have to find the integration of x square minus 2x plus 1 whole square dx. देखिए जब तक जहाँ तक हमारा लीनियर फंक्शन है उसके पावर फंक्शन तक हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वी आर हैविंग क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्क्वायर है हमारे पास, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. पहले हमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, इससे हमारे जो डिफरेंट टर्म्स आ जाएंगे उनकी डिफरेंट टर्म्स का हम अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे. तो यहाँ से होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c. ठीक है, तो यहाँ से हम ओपन कर देंगे x टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर. ठीक है, ये आपका हो जाएगा. अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है. एक्स स्क्वायर में देखिए हमारे पास दो टर्म आ चुकी हैं, एक्स स्क्वायर की 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो दोनों देखिए हमारा क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर. ओके, अब हम इंटीग्रेशन जब अप्लाई करेंगे सब पे सेपरेट इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर सकते हैं. अब जो आपका पावर मेथड हमने किया था, पावर क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे सभी के ऊपर, सॉल्व करेंगे. ओके, now in the ninth part we have to find the integration of a to the power x and a to the power x dx. यहाँ पे देखिए दोनों की बेस पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, so we can multiply the bases and take common the power. So we are having a e to the power x here. You can see that all of you know that in a to the power x, a is constant. Also e is again a constant, and multiplication of two constant is again a constant.
and we know that differential integration of a to the power x dx is a to the power x upon log a. यहाँ पे a की जगह क्या है a, so we have the integral a e to the power x upon log a e plus c. Now in the second question we have to evaluate the following integrals. And the first part we are given integration of x plus 1 whole cube upon x square dx. Students, अभी हमने होल स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है वो इन द फर्स्ट क्वेश्चन अभी डिस्कस किया. इन द सेम वे इस टाइप के जो आपके p बाई q की फॉर्म में हमारे लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी है, तो उनके देखिए a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला हमें पता है. तो हम जिसमें आपके फॉर्मूले लग के एक्सपेंशन जिसमें हम खोल सकते हैं उसमें हम एक्सपेंशन खोल के जो आपके प्रोडक्ट या डिवीजन में जो आपके फंक्शंस होते हैं उनको सम या डिफरेंस की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं. जैसा कि हम इसका उल्टा हम डिफरेंशिएशन में करते थे. डिफरेंशिएशन में हम जितने भी बड़ी बड़ी टर्म्स का सम या डिफरेंस अगर दिया होता था तो हम कोशिश करते थे कि उनका मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में प्रोडक्ट रूल जो हम लगा सके या फिर डिवीजन रूल हम लगा सके, तो इनको सिंप्लीफाई फैक्टर्स की फॉर्म में हम लाने की कोशिश करते थे. लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कोशिश, हम जो आपके इस तरीके से पी बाई क्यू फॉर्म क्वोशिएंट रूल या प्रोडक्ट रूल यूज ना करके क्या करेंगे, इनको सिंपल एक्सपेंशन खोल लेंगे. ठीक है, तो यहाँ ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ खोलेंगे विद दैट एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. Now we'll separate this x square with each term. We are having x cube by x square plus 1 upon x square plus 3x square upon x square plus 3x upon x square. Integration of this. So यहाँ से देखिए हमारे पास ये फिर से हमारा 4 टर्म्स का जो है सम है, तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर सकते हैं विद ईच टर्म. सो वी आर हैविंग हियर, यहाँ से देखिए x बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx. यहाँ पे x to the power 1 upon x square, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x to the power minus 2. So we are having here integration of x to the power minus 2 dx. Here we will having with x square 1. 3 हमारा बाहर आ जाएगा कॉमन. We have integration of 3 into integration of 1 dx plus 3 again फिर से कॉमन, x to x कैंसिल होके we are remaining with 1 upon x. So 3 into integration of 1 upon x dx. यहाँ से देखिए x to the power n के हम रूल लगाएंगे, x to the power n plus 1 upon n plus 1. ठीक है, तो x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2. 1 का क्या हो जाएगा, x. ठीक है, यहाँ से x to the power minus 2 का x to the power minus 1 upon minus 1. Now इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया. इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x क्या होता है, log of mod x. ओके, सो इन दिस वे दिस इज x square by 2 plus 3x minus 1 upon x plus 3 log of mod x plus c. This is our required answer. Here is the third question. We are to evaluate the following integrals. देखिए यहाँ पे हमें जो इंटीग्रल दे रखा है उसमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आपके पॉलिनोमियल फंक्शन है. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर हमारा न्यूमरेटर की डिग्री इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर होती है तो हम या तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके या फिर हम सिंपली नॉर्मली डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम जो है इसको राइट डाउन करेंगे. देखिए यहाँ से अगर हम सिंपल देखें तो x to the power 4 को अगर हम x plus 1 से डिवाइड करें we will have x cube x to the power 4 plus x cube minus get cancel minus x cube minus x square minus x cube minus x square plus 1. X square remaining, it will be goes on, will have here x is the x square plus 1 into x we get x square. Sign again changes, we are remaining with x. Now x 1 is x. ठीक है, x 1 is
1 1 सा 1, so we are remaining here with -1। तो यहाँ से देखें तो हम देखिए क्या रूल क्या होता है, डिविडेंड कोशेंट रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ से हम जो डिविडेंड है दैट इज x टू द पावर 4 है, उसको क्या लिख सकते हैं, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, साथ में रिमाइंडर भी है तो उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे -1। ठीक है, दैट मीन्स हमने जो x टू दी पावर 4 है उसको ये लिख दिया, तो ये जो +1 -1 है इसको हम इधर ले आते हैं, x टू दी पावर 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 1 को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डायरेक्टली भी फैक्टराइजेशन का यूज करके, या तो हम डायरेक्टली यही पुट करते हैं जो हमने अभी लिखा है, ये चीज पुट करेंगे हम, यहाँ से x प्लस 1 जो है वो हट जाएगा, केवल ये टर्म बचेगी, इनका हम सिमिलरली बहुत ही सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बोथ मेथड हम यूज लगा सकते हैं, x टू दी पावर 4 को देखिए हमने क्या तोड़ दिया है, डिवीजन मेथड से हम देख सकते हैं, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1, ये लिखा है हमने। अपोन में हमारे पास क्या है, x प्लस 1 इंटू dx। एक मेथड तो कहता है हम ये यूज करें। ठीक है, अब देखिए आगे बहुत सिंपल है, मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगी, फैक्टराइजेशन मेथड भी और ये आपका डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड में आपकी गलती नहीं होती और उसमें आपको आंसर मिलता है, और वो जो है कई बार तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, कई बार तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, कई बार काफी लंबा हो जाता है, फिर भी आंसर नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे देखिए हम जब सेपरेट करेंगे x प्लस 1 को, विल हैव x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। तो सेपरेट कर लेते हैं dx dx। ओके, ये हो गया। अब ये बहुत सिंपल है, x टू द पावर n का हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो विल पुट हियर x क्यूब का क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 अपॉन 4, x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3, x का x स्क्वायर अपॉन 1 2, 1 का इंटीग्रेशन x। अब देखिए ये 1 अपॉन x प्लस 1 है। ठीक है, तो 1 अपॉन x का हमें पता है क्या होता है, log ऑफ mod x। ऑल्सो हमने किया था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b, वो क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ ax प्लस b, और साथ में हम a से डिवाइड। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 और b की जगह क्या है 1। सो विल हैव हियर द इंटीग्रेशन विल बी 1 अपॉन 1, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, log ऑफ mod ऑफ x प्लस 1 प्लस c। सो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। दूसरा मेथड हम क्या लगा सकते हैं, अगर हम डिवाइड ना करना चाहें x प्लस 1 से x टू द पावर 4 तो क्या करेंगे हम, देखिए x टू द पावर 4 में 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, -1 प्लस 1 कर दिया। ठीक है, अब देखिए x टू द पावर 4 माइनस 1 क्या हो गया, x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, आइडेंटिटीज का यहाँ यूज कर सकते हैं। अब ये सेपरेट हो गया, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 तो चल गया। अगेन x स्क्वायर माइनस 1 पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में लगा सकते हैं, विल हैव x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू
स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, तो x प्लस 1 जो है अब हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास होगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये भी टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपको शॉर्ट लगे वही मेथड आप जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, in the third part also we are to evaluate the following figure. We are given integration of x plus 1 upon root of 2x minus 1 dx. Again you can see we are given a polynomial upon a polynomial. ठीक है, रेशनल फॉर्म में रेशनल पोलिनोमियल दिया है। तो यहाँ रेशनल फंक्शन, यहाँ पे देखिए रूट में इस टाइप के क्वेश्चन से जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में रूट में फंक्शन दिया है, अगर दोनों ही लीनियर है तो पहली बात तो हम क्या करते हैं, कोशिश की हमारा जो नोमिनेटर में फंक्शन है उसको हम सेम डिनोमिनेटर जैसा बनाएं। तो यहाँ पे देखिए रूट में 2x माइनस 1 है, तो यहाँ पे भी हम 2x माइनस 1 की करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2 चाहिए मल्टीप्लाई में, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 2 से, विल हैव हियर 2x प्लस 2। हमें क्या चाहिए 2x माइनस 1, तो हम क्या करते हैं 2 को क्या लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस 3, तो हमने 2x प्लस 2 को क्या लिख दिया 2x माइनस 1 प्लस 3। अब हम जो है रूट ऑफ 2x माइनस 1 को सेपरेट कर देंगे दोनों पे, विल हैव 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस 1 dx। रूट मींस वी आर हैविंग पावर 1/2। ठीक है, यहाँ से देखिए पावर 1 है, यहाँ 1/2 सब्ट्रैक्ट होके वी विल हैव 2x माइनस 1 टू द पावर 1/2 dx। एंड हियर डिनोमिनेटर में है पावर 1/2, न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव हो जाएगी, विल हैव 3/2। 3 तो हम बाहर निकाल देते हैं, 2 1/2 यहाँ ओवर मल्टीप्लाई सेपरेट कर दिया हमने, तो यहाँ से आ गया 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 टू द पावर माइनस 1/2। Now we know that integration of ax plus b to the power n dx is ax plus b linear to the power को हम इजीली वैसे पावर फंक्शन की तरीके से सॉल्व करेंगे पहले, फिर जो आपके साथ पास x का जो कोएफिशिएंट है उसके भी हम साथ में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यही रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पावर 1/2 है, तो पावर 1 ऐड होके क्या हो जाएगी पावर 3/2, डिवाइड भी करेंगे 3/2 से, अगेन ऑल्सो किससे करेंगे x के कोएफिशिएंट दैट इज 2 से डिवाइड करेंगे। तो विल हैव हियर 2x माइनस 1 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 इनटू 2 कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पे देखिए पावर माइनस 1/2 है, 1 ऐड होके पावर हो जाएगी 1/2, डिवाइड भी करेंगे इसी पावर से, मल्टीप्लाई में हम करेंगे x के कोएफिशिएंट से यहाँ डिवाइड। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल, विल हैव 1/6। देखिए यहाँ से 3 2 6 हो गया, 1/6 से 2x माइनस 1 टू द पावर 3/2। यहाँ से देखिए प्लस 3/2 2x माइनस 1 टू द पावर 1/2 प्लस 6। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। Now in this sum, we have question 4th part. Again we have to write the following integrals. We are given integration of 2x upon root of a plus x plus root of a minus x dx. स्टूडेंट्स इस टाइप के सम जिसमें डिनोमिनेटर में इस तरीके से आपको रूट के फंक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर से रूट को हटा देते हैं बाय यूजिंग आवर रैशनलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं बीच में जो आपका साइन है वो चेंज करके मल्टीपल टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, विल हैव हियर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल होके हमारे पास बचेगा a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, माइनस माइनस तो प्लस दैट इज a प्लस माइनस a प्लस एक्स। यहाँ से a टू a माइनस a टू माइनस a कैंसिल, हियर डिनोमिनेटर we will have x plus x 2x 2x and 2x get cancelled from the numerator, denominator will have integration
a plus x minus root of a minus x. Separate कर देते इंटीग्रेशन, विल हैव इंटीग्रेशन रूट मींस पावर 1/2. हियर आल्सो पावर 1/2. अब हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b to the power n क्या होता है, ax plus b to the power n plus 1 upon n plus 1 into a. ठीक है, पावर का करते हैं साथ में जो आप लेंगे x के साथ का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे देखिए जो आपका x के साथ कोएफिशिएंट है वो 1 ही है, तो इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट हम पावर 1 ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ से हमारे पास आएगा x a plus x to the power 3/2 upon 3/2 minus a minus x to the power 3/2 upon 3/2 plus constant of integration. यहाँ से पावर, ये जो पावर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, विल हैव 2/3 अगेन हियर आल्सो 2/3 we can take common, we'll have here a plus x to the power 3/2 minus a minus x to the power 3/2 plus c. This is our required integration. So for today students it's enough. So your homework is to solve first 4 sum of exercise 9.1. You are to solve sums 1 to 4 of exercise 9.1.